गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एड्रेस मैपिंग विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, हाउ वी फाइंड द एड्रेस which is in the network, which means that the destination in the network. Also, we see in next lectures about error reporting and multicasting, what is the purpose of error reporting and how it works and how the packets are multicasted in them. Firstly, we know about address mapping. Basically, in addressing, there are four types of addresses, that is physical address, logical address, port address, and specific address. Physical address are the address which is permanent, which is unique, which is the address of your Ethernet card. Okay, and the logical address is the IP address, also called as IP address, which is different in different networks or common in public networks. So we see that the delivery of packet from host to router. Host, acha, what do you mean by packet? Packet is from which layer? Packet defines which layer? Sir, network. Yes, this is a network layer protocol. ठीक है, फिर पैकेट्स टू होस्ट और अ राउटर रिक्वायर्स टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग, दैट इज लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. In this, if we send any data from source to destination, we know the both address of that system or a destination. So with in this, we need to be able to map a logical address or the physical address with the help of vice versa, which means that if we know about logical address, we can find the value of physical address. If we know about physical address, we can find the value of logical address of that physical address. This can be done using either static or dynamic mapping. In this, we see this protocol that is known as ARP. ARP and RARP are known as the binding protocol addresses. In this binding protocol addresses, they are bind with logical address and the physical address. In this diagram, a system A want to send a packet to system B. System A only know about their physical address. Oh, sorry, logical address. System A only know about their logical address. They send a request in their network. They send a request in their network. With the help of their logical address, they ask about physical address. They ask about the physical address of that logical address. This request is broadcasting, which means that system A broadcasts each and every node which is connected in a network, and say what is the physical address of this IP address which is mentioned in the box. If the IP address is same and the message is going to the same IP address, they only reply that the node physical address is this, which is in the form of reply, which is in the form of unicast. Okay, समझ में आया बेटा आप लोगों को? एक बार मैं अपने लैंग्वेज में फिर से बोलूं? सर एक बार और समझा दो. देखिए, अब इसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं. एग्जांपल ले रहा हूं. There are two type of address, that is known as logical address and physical address. अभी आप लोग कौन से सेमेस्टर में हो बेटा?
फिफ्थ। फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हो आप, और आपके दो टाइप के एड्रेस बताओ, आप कौन कौन से दो टाइप के एड्रेस हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा कम्युनिकेशन आप रजिस्टर। लोगों से हो रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप और मेरे बीच में मैं दो नाम से या दो मेथड या दो चीजों से मैं आपको बुला सकता हूं। वो क्या क्या हो सकती है? रोल नंबर और नेम। वेरी गुड निखिल, रोल नंबर एंड नेम। अब मैंने बोला कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपका मैक एड्रेस होता है। आप मुझे ये बताओ, मैक एड्रेस जो बात करता हूं वो ऑलवेज यूनिक होता है। क्या होता है? ऑलवेज यूनिक। ठीक है। अब ये जो दो चीज आपने मुझे रिप्लाई में दी, दैट इज योर नेम एंड योर रोल नंबर, इन दोनों में यूनिक क्या है? रोल नंबर। वेरी गुड। तो रोल नंबर आपका यूनिक है, विच इज योर मैक एड्रेस। वेरी गुड, मैक विच इज योर मैक एड्रेस। तो अनदर वाली चीज क्या हो जाएगी? दूसरी वाली लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, नाम आपका लॉजिकल एड्रेस हो जाए। ठीक है। अभी जिस ड्यूरेशन, जिस कोर्स में आप हो, उस ड्यूरेशन के बेस पे बात करो। ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा डिफरेंट वे में देखना चाहता हूं। अभी आपने कौन से इसमें बात करी? ये 4 साल की बात करी। ठीक है। अब मैं आपके जीवन के जितने आज तक पॉइंट है, वहां से लेके मैं यहां तक आना चाहता हूं। आपके स्कूल में आपका रोल नंबर था? यस सर। ठीक है। आपके कॉलेज में आपका रोल नंबर है? यस सर। यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसमें भी एक रोल नंबर मिलेगा? यस सर। आपने जेडब्ल्यू दिया था उसमें भी एक रोल नंबर होगा, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है। दिया होगा तो आपका यूनिक रोल नंबर होगा। ठीक है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम देंगे तो उसमें भी एक रोल नंबर होगा। यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ठीक है। अगर वहां से लेके आज तक आप बात करते हो, आपके बर्थ से लेके स्कूलिंग चालू होने से लेके आज तक की बात करते हो, तो आपका फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा? मेरा नेम हो जाएगा सर। आज तक कॉमन क्या चला आपका फिजिकल एड्रेस? सर नाम। वेरी गुड, योर नेम अलॉन्ग विथ योर सरनेम, योर फुल नेम, विच इज मीन दैट। ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक आपका फुल नेम जो चला आपका, वो फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया? रोल नंबर। रोल नंबर। अब ये जो आधार आईडी, आधार आईडी इज योर आईपी एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। आधार आईडी फिजिकल ऑलवेज यूनिक इन योर लाइफ, फिजिकल एड्रेस, है ना? ऑल आधार आईडी इज ऑलवेज यूनिक इन योर लाइफ एज वेल एज आफ्टर लाइफ। जो आधार आईडी मुझे मिल गई है, मैं रहूं या ना रहूं, वो आधार आईडी दूसरे को अलाउड नहीं होगी। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये काम एक हुआ हमारा। अब बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमें आधार आईडी मिली, सॉरी आधार आईडी पे नहीं जाते हम जाते, हाँ चलो आधार आईडी पे ही चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। विकी अच्छा एग्जांपल दिया। एक आपका आधार आईडी हो गया, दूसरा आपका रोल नंबर हो गया। तो जब हम रोल नंबर बात करते हैं तो हर फेज में एक रोल नंबर आपको मिला। ओके, यस सर। स्कूलिंग में एक मिला, इसमें एक मिला, विच मीन्स दैट डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए वो आपके। यस सर। योर लाइफ के डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए, वो डिफरेंट नेटवर्क्स आपको मिल गए। अब उस नेटवर्क के बेसिस पे, जैसे अभी आप कॉलेज में आ गए हो, ओके, वो कॉलेज में आ गए हो, और जैसे ही आए हो तो सिस्टम कॉलेज का एक क्या बोल रहा है कि लुकिंग फॉर योर फिजिकल एड्रेस नोड विथ योर आईपी एड्रेस। इसने एक रिक्वेस्ट करी, क्लास के अंदर मैं आया और मैंने बोला कि ये रोल नंबर का आधार नंबर क्या है, या ये रोल नंबर का नाम क्या है। मैं ये पब्लिक अनाउंसमेंट करूंगा या
एक एक बच्चे को जाके बोलूंगा? मेरे लिए क्या आसान है? सर पब्लिक पब्लिक अनाउंसमेंट दैट इज नोन एज रिक्वेस्ट। अनाउंसमेंट करोगे। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग कर दी मैंने। इस रोल नंबर का आधार नंबर क्या है? ये रोल नंबर 1 पे गया, रोल नंबर 2 पे गया, रोल नंबर 3 गया, तो ये विथ आईपी एड्रेस ये रिक्वेस्ट सभी के पास चली गई। अब जो बच्चा, उसका जो रोल नंबर होगा रिप्लाई वही करेगा या सब करेंगे? जिसका रोल नंबर है जिसका रोल नंबर होगा वही करेगा। तो उसने रिक्वेस्ट की, रिप्लाई कर दी कि माय फिजिकल एड्रेस इज दिस। मेरे पास जिसका रिप्लाई आएगा मैं वो मानूंगा। मेरा आधार नंबर ये था, मेरा फिजिकल एड्रेस ये हो गया, मेरा नाम ये हो, मेरा आधार नंबर ये है, जो मेरा रोल नंबर ये। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, देर आर 3 टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ओ सॉरी कास्टिंग। फर्स्ट इज यूनिकास्टिंग, नोट कर लें कहीं प्लीज। फर्स्ट इज यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये अपन ने कराया था, है ना? तो यहां पे 3 टाइप की कास्टिंग यूज हो रही है। यहां पे नेटवर्क लेयर का इस तरीके से पता करता है आगे वाले लेयर में जाके कि भाई साहब इस नेटवर्क से ये आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यहां ये चीज फिनिश हुई। अब सेम है एआरपी के बाद में। एआरपी कैन बी यूजफुल इफ एआरपी रिप्लाई इज कैश्ड, केप्ट इन कैश मेमोरी फॉर अ वाइल। ये मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी चीज में बताता हूं। जब राउटिंग होती, व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग एंड रूटिंग? रूटिंग मतलब रूट को डिफाइन करने वाला। तो जैसे अगर हम बात करें, हमारा नेटवर्क आईटी 5th सेमेस्टर है, तो आईटी 5th सेमेस्टर के हमारे 2 रिप्रेजेंटेटर कौन है? हमारे सीआरस। तो हमारे सीआरस अपने टेबल में 2 चीज रखेंगे। क्या 2 चीज रखेंगे? फर्स्ट, रोल नंबर along with physical address, id ip address along with physical address। ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस। और ये जो डेटा अपडेट करेंगे, ये हर 35 सेकंड या 40 सेकंड के बाद डेटा पैकेट अपडेट। ठीक है, मतलब वो जो पैकेट है वो नेटवर्क में घूमता रहेगा, हर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा और वो घूमेगा, फिर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा, फिर घूमेगा, फिर 35 सेकंड के बाद ट्रिगर होगा और घूमेगा। ठीक है, अब एआरपी पैकेट का एक फॉर्मेट होता है। किसी भी पैकेट जो है, या फ्रेम्स है या सेगमेंट्स है, ठीक है, और सबसे आखिरी में क्या था? फ्रेम, पैकेट्स, सेगमेंट्स, क्या था फिर लास्ट में? एप्लीकेशन लेयर में सेशंस, डीएनएस, मैसेजेस। सर मैसेजेस थे। ठीक है, तो वो जो भी चीज है तो उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। जैसे हर टीचर का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। कोई क्लास के फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 मिनट्स में अटेंडेंस लेता है, कोई लास्ट 5 मिनट्स में अटेंडेंस लेता है। ठीक है, एक बोलने का तरीका होता है किसी का, तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसका भी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो हर पैकेट का, हर सेगमेंट्स का, हर फ्रेम का, हर मैसेज का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस कितनी लेंथ की होती है? 32 बिट। वेरी गुड, 32 खाली नहीं, 32 बिट्स पे आएगा। अब बाइट्स में कन्वर्ट करो तो कितने बाइट की होती है? 64 2 to the power 32 बाइट्स। yes sir 6